میں دعوت دوں گا کہ زوردار تالیوں میں خدا کے کلام کو اور خدا کی بندی کو مسز آئرین یوسف ان کے وسیلے سے ہے پانچ وقت کلمہ سے خداوند اس کلمے کے وسیلے سے ہمیں برکت۔ مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج کا پانچواں کلمہ جسمانی دکھ کا کلمہ۔ میں پیاسا ہوں۔ جب یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں تو یسوع مسیح ایک کامل انسان ہے اور کامل خدا ہے۔ یہاں سے یہ ثبوت ملتا ہے، ہمیں یہ پروف ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان اور کامل خدا ہے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ یوحنا انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 28ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ ایک ہی آیت پہ بات ہوگی، میں پیاسا ہوں، اسی میں ایک ہی آیت پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئی تاکہ نوشتہ پورا ہو، اور کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت ہو۔ کلمے کی جمع کلمات ہے، جس سے مراد وہ بامعنی باتیں ہیں جو کسی انسان کے منہ سے نکلی ہوں۔ یہ آخری 7 کلمے خداوند یسوع مسیح کے اس وقت منہ سے نکلے جب وہ صلیب پر تھے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں پیاسا ہوں۔ پہلے 3 کلمے آپ جانتے ہیں، میں 5واں کلمہ پیش کر رہی ہوں، میں پیاسا ہوں۔ اس سے پہلے جو 3 کلمے، ٹوٹل 7 کلمے ہیں، جو 3 کلمے ہیں خداوند یسوع مسیح نے دوسروں کی ذات کے لیے کہے۔ جو آخری کے 4 کلمے ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی ذات کے لیے کہے۔ 15 گھنٹے گزر گئے تھے، اس تکلیف سے خداوند چل رہے تھے۔ یسوع مسیح پیاس پانی کے بغیر چل رہے تھے، اور اس ٹائم کو 15 گھنٹے اب تک ہو چکا تھا۔ ان کے دکھ تکلیف بڑھتے جا رہے تھے، کوئی کمی نہیں آئی تھی ابھی تک۔ وہ جسمانی دکھ سے بڑھتے جا رہے تھے اور ان کی جسمانی ذات کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ سب نے بیان کر چکے کہ ان کو کوڑے لگے، کانٹے لگے، سب کچھ، وہ تکلیف میں تھے، بہت اذیت ان کی بڑھ رہی تھی۔ وہ انسان تھے، انہیں تکلیف ہوئی۔ جب وہ تھک گئے تو تب انہوں نے کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان تھے، کیونکہ جب وہ اپنی پیاس کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہاں سے ہمیں پروف ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک کامل انسان تھے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ ایکسپٹ نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان تھے، وہ اس چیز کو نہیں ایکسپٹ کرتے، لیکن بائبل یہ واضح کرتی ہے کہ وہ کامل انسان تھے اور کامل خدا تھے۔ یہ کلیئر بات ہے، خداوند یسوع مسیح کامل ہے، اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ بائبل مقدس ہر ایک چیز کو واضح، آپ کوئی بھی حوالہ پڑھتے ہیں تو اس میں اگر آپ جائیں، جیسے لوکا ہے، میں آپ کے سامنے کچھ حوالے دوں گی، زیادہ نہیں، کچھ دوں گی کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وہ کپڑے میں لپٹا چبی میں رکھا، تو سب نے یہ دیکھا۔ لوکا 2 باب اس کی 7 آئے تو یہ سب نے پڑھا بھی ہے، ہم لوگوں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں کہ وہ چبی میں لپٹا، یسوع مسیح ہمیں وہاں، اور سب اس کو آتے ہیں، تو وہ انسان تھا تو وہ لپٹا تھا۔ پھر لکھا ہے اسے بھوک لگی، متی میں 4 باب اس کی 2 آیتیں لکھا ہے کہ اسے بھوک لگی۔ پھر لکھا ہے وہ سو گیا، انسان ہی سوتا ہے نا، خدا تو نہیں سوتا، وہ انسان تھے تو وہ سوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے دعا کی، مرکز چیپٹر 1 ورس 35۔ پھر وہ چلایا کہ میں پیاسا ہوں، یہ آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یوحنا کی وہی 19 باب اس کی 28ویں آیت۔ پھر خداوند یسوع مسیح ہر بات میں، ہر بائبل میں، ہر آپ جتنے بھی حوالے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ایک انسان ہے، وہ اپنے دکھ کی، اپنی تکلیف کی ہر بات ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ ہر بات پہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خداوند کے
मुताबिक उतरे, बाप की मर्जी के मुताबिक चल सके। पांचवें कलमा में जब कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, ये पुराने अहदनामे के पेशन गोई की तामीर है। खुदावंद कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, मैं चिल्लाते थक गया, मेरा गला सूख गया। ज़बूर चैप्टर 69 वर्स 3। मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। ज़बूर चैप्टर 69 वर्स 21। जिंदगी का पानी दरअसल यीशु मसीह वो पानी का मुतारिफ करवाना हमसे चाह रहे थे जो उनके पास थी। उनके पास जिंदगी का पानी था। वो हमें अपनी प्यास का कह के ये जाहिर करवाना चाहते हैं कि वो प्यास जिस्मानी भी है, हमें जिस्म की भी प्यास थी। थक गए थे, 15 घंटों से वो तकलीफ थे और वो दर्द, वो तकलीफ सह रहे थे, गर्मी भी बहुत थी। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन वो एक और प्यास की भी बात कर रहे हैं। आपने सब नहीं सुना होगा कि उन्होंने कहा सामरी औरत का, जब कहा कि सामरी औरत को उन्होंने पानी मांगा तो उसने कहा काश तू जानती, यीशु मसीह ने कहा काश तू जानती कि मैं कौन हूँ तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो यहाँ पर जो पानी प्यास की बात करे ना, यहाँ पर भी वो पानी की ही बात करे, प्यास की बात करे, और वहां पे वो प्यास की ही बात करे। सामरी औरत से भी उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो दोनों चीजें मिलती हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ। ये दुख की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह आज भी प्यासे हैं। वो आज भी उसी प्यास, उसी तकलीफ में है, क्योंकि वो हमारी रूहों का प्यासा है। वो हमारी रूहों का प्यासा है। और हम लोग खुदावंद यीशु मसीह के आज के दिन को बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ना हम दुआ करते हैं, ना हम रोजा रखते हैं, ना दूसरों तक ये पैगाम पहुंचाते हैं कि असली खुदा की प्यास थी क्या। खुदावंद यीशु मसीह किस पानी और किस प्यास की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं जिस्मानी दुख था, प्यास थी, पानी पीना था, बट हम ये भी सोचे कि वो क्यों कह रही है कि मैं प्यासा हूँ। जब इस औरत की मिसाल देखती हूँ तो फिर बहुत गहरी चीजें निकलती हैं कि उस वक्त वो कह रहे हैं, फिर उसको कहते हैं, उस औरत को कहते हैं कि काश तू जानती तो मैं कौन हूँ, मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। तो इसी तरह हम लोग भी जाने कि वो किस प्यास की बात कर रहे हैं, कि वो हमें जिंदगी का पानी देने वाले हैं। उसके पास उसका हर चीज अख्तियार है। खुदा यीशु मसीह के पास अख्तियार है हर चीज का। तो फिर भी वो हमसे मांग रहे हैं, आज वो इस कलमे में हमसे मांग रहे हैं। हर जगह उसको उन्होंने हमें दिया, सिखाया, लेकिन इस कलमे में उन्होंने मांगा है। तो गौर करने की बात है। खुदावंद यीशु मसीह के साथ इन बातों पे समझने की जरूरत है। बहुत सख्त हमें इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमसे, हमारे लिए सब कुछ किया ही मोहब्बत के लिए था। खुदावंद यीशु मसीह हमसे मोहब्बत रखते थे। उन्होंने अपनी खुशी से जान दे दी, खुशी से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, खुशी से अपनी जान दी। पालूस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, मोहब्बत सब सह लेती है, सब सह लेती है। वो उसकी मोहब्बत थी, उन्होंने ये तकलीफ, दर्द, हर चीज हमारे लिए बर्दाश्त की ताकि हम जिंदगी का पानी पिए, ताकि हम, खुदावंद यीशु मसीह चाहते थे ताकि हम ईमान लाएं और बाप से मिलने वाले हों। हमारे दरमियान वो जो नफरत है वो खत्म हो जाए, वो गुनाहों की नफरत है, गंदगी है हमारी जो थी। क्या आज हम ये सोचते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्यों कहा मुझे क्या प्यासा हूँ? गौर करें। मैं जो समझती हूँ, मैंने ये समझती हूँ, खुदावंद ने कहा है कि जो रूहों को नहीं पता कि वो प्यासी हैं, हम उनके पास गए हैं, उनको बताया यीशु मसीह के बारे में, वो तो आज भी प्यासी हैं। कई ऐसी रूहें प्यासी ही चली जाती हैं। तो क्या हम लोगों ने इस बात को कभी महसूस किया है कि हमें चाहिए कि हम वो रूहों के पास जाएं और यीशु मसीह के बारे में बताएं? यीशु मसीह उन रूहों का प्यासा है। क्या हम लोगों ने कभी ये अपने बोझ को समझा? क्या हमने ये कभी मोहब्बत का इजहार किया? नहीं, कभी भी नहीं किया, कभी भी। एक हमारे घर में या हम किसी को जानते हैं, मसीही फैमिली की बात कर रही हूँ, जो दूसरी तरफ जा रहा है, ठीक है, जो खुदा को टाइम नहीं दे रहा या खुदा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई और चीजों की तरफ जा, ना वो
जा रहा है, ठीक है। तो क्या हम उसके पास गए, हम तो कहे ओए यार जादू करिए ना गल ना करी, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ डर जाने ते असां ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ है कि यीशु प्यासा है। यीशु आज भी तड़पता है, उसकी तड़प को महसूस करें, अपने आप को और तब्दील करें। हम इस कलाम के मुताबिक जिंदगी तो नहीं गुजार सकते, ये बात सच है, ये बात सच है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हम बड़े कमजोर इंसान हैं, मगर कोशिश करें कि यीशु अब प्यासा ना रहे। उसको जो चाहिए हमारी रूहों की, हमारे दिलों को हम सेव करें। और हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए, क्या हम प्यासे हैं? कौन कौन समझता है कि हम प्यासे हैं? ये मेरे ख्याल से सब सोचना नहीं चाहिए था। मैं आपको बड़े ईमान से बोलूं, जब ये प्यास का पूछा तो मेरे ख्याल से खड़े हो जाना चाहिए हाथ दोनों, क्योंकि अंदर तड़प होनी चाहिए यीशु की, ये प्यास कभी ना बुझे। यही दुआ किया करें कि मेरी प्यास यीशु के लिए बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। यीशु मसीह की बधाई। प्यास हमारी जिंदगियों में, ये प्यास एक नहर की तरह आए और हमें बहा के ले जाए, और ईमान के साथ हम आसमान पे जा सके और बाप से मिल सके और कहे कि हमने खुदावन यीशु मसीह तेरी प्यास को महसूस किया। खुदावन यीशु हमें तौफीक दे कि हम ऐसा कर सके। यीशु मसीह को प्यासा ना रहने दे। ये कलाम अपने अंदर थाम ले, ये कलाम को अपने अंदर ठहरा ले और कहे आज से ही कि खुदावन यीशु मसीह मैं तेरी प्यास कैसे बुझाऊं, मैं उन रूहों के पास कैसे जाऊं, मैं कैसे तेरे प्यास को बुझा सकता हूँ। ऐ मेरे यीशु तू मुझे बता, मुझे तेरी मदद की लोड़ है। मैं आज भी हम लोग कमजोर हैं, खुदावन यीशु मसीह हमें तौफीक दे और ये प्यास बुझनी ना पाए, ये कलाम ठहर जाए इसी यीशु के नाम में। ये सब कुछ मांगती हूँ मैं खुदावन यीशु के नाम से। आज का कलाम आप सब के लिए बड़ी बरकत पाऊंगा। ये सब कुछ मांगती हूँ और बड़े ईमान से बात हूँ। हालेलुया। ये प्यास नहीं बुझेगी, सब बोले नहीं बुझेगी। हम खुदावन यीशु मसीह की प्यास बुझाएंगे, बुझाएंगे। जोर से बोलें। खाना नहीं खाया यीशु भी 15 घंटे तो इतनी तकलीफ तो तुसी थोड़ी देर में भी बर्दाश्त करेंगे। चलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे और अगले खादम के लिए हम दुआ करेंगे, सब मिलकर हम उनके लिए दुआ करेंगे। खुदावंद के लहू में उनको छुपाएंगे कि खुदावंद का बंदा रूह से मामूर होके खुदावंद की बातें हम तक पहुंचाए। कदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। खुदावन तेरे बेटे का शुक्र अदा करती हूँ। खुदावन खुदावन यीशु के नाम से ये मांगती हूँ, खुदावन अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, अपने बंदा को लहू में छुपा, सर से पाँव से लेकर खुदावन उसे छू। खुदावन कलीसिया के दिल और दिमाग को खोल, ये बंदे के कलाम को सुने और जड़ पकड़ने वाली हूँ। खुदावन अपने बरकत बंदा को बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगती हूँ और बड़े ईमान से पाती हूँ। आमीन।